Yes, play Mridang. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Girvaradhari Yasodhanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Yamuna Ranjana Tera Vanachari. Jamuna Tira Jaya Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Madhava Kunja Jana Bihari Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradhari Yasodhanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Yamuna Ranjana Tera Vanachari. Jamuna Tira Yamuna Vanachari Tera Vanachari. Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaur Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaur Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Jai Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya 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 Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जय ओम विश्वपाद परमहंस परव्राज कचार श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। की जय, ग्रंथराज श्री श्रीमद भागवतम की जय। भक्ति की जय, वेदांत परपट की जय। निताई की गौर जय। परम हरि all हरि बोल। glories to assembled devotees, all glories to assembled Gauranga Auranga Hari Hari। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य Narayanam Namaskrityam नरं चैव नरोत्तमं Naram Chayna Narottam दैवीं सरस्वती व्यासं Devi Saraswati ततो Vyasam जयमुदीरयेत। Tadavo Jai Muni नष्टप्रायेषु अभद्रेषु Nashtaprayasu Bhadresu नित्यं भागवत सेवया Nityamabhagavata Sevaya भगवते उत्तम श्लोके Bhagavate Uttama Sloke भक्तिर्भवति नैष्टकी। Bhaktir Bhavati Neshtaki श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 कैंटू 7 अध्याय 9 चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 36 श्लोक संख्या 36। हरे कृष्णा। ठीक है, एक मिनट। हरे कृष्णा। आपका तो एवं सहस्र बधनांग शिरा करोरुर नासाद्य कणनयना भरणायुधाढ्यम मायामयं सदुपलक्षित सन्निवेशम दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरंचिः। चैप्टर 7:9:36 इसका अनुवाद इस प्रकार से है। तब ब्रह्मा जी ने आपको हजारों मुखों, पांव, सिरों, हाथों, जांघों, नाकों, कानों तथा आंखों से युक्त देखा। आप भली भांति वस्त्र धारण किए थे और नाना प्रकार के आभूषणों तथा आयुधों से सुशोभित थे। आपको विष्णु रूप में देखकर तथा आपके दिव्य लक्षणों एवं अधोलोकों से फैले हुए आपके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी को आनंद प्राप्त हुआ। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। परम शुद्ध होने के कारण ब्रह्मा जी भगवान को उनके मूल विष्णु रूप में देख सके, जिनके हजारों मुख तथा रूप थे। यह विधि आत्म साक्षात कहलाती है। असली आत्म साक्षात्कार भगवान के निर्विशेष तेज का दर्शन नहीं है, अपितु भगवान के दिव्य रूप का साक्षात दर्शन है। जैसा कि यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है,
ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को महापुरुष के रूप में देखा। अर्जुन ने भी कृष्ण को इसी रूप में देखा था। अतः उसने भगवान से कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र करने वाले परम सत्य नित्य दैवी पुरुष है। भगवान परम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ रूप है। पुरुषम शाश्वतम, शाश्वत परम भोक्ता है। ऐसा नहीं है कि निर्विशेष ब्रह्म रूप धारण करता है, अपितु निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान के परम रूप का उद्भास है। ब्रह्मा शुद्ध होने पर भगवान के परम रूप को देख पाए। निर्विशेष ब्रह्म के सिर पांव हाथ नाक कान नहीं हो सकते। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो भगवान के रूप के लक्षण है। मायामयम शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। इसकी व्याख्या मध्वाचार्य ने की है, मायामयम ज्ञान स्वरूपम। भगवान के रूप को बताने वाले इस मायामयम शब्द का अर्थ है मोह। नहीं लेना चाहिए। प्रत्युत भगवान का रूप वास्तविक है। इस रूप का दर्शन पूर्ण ज्ञान का प्रतिफल है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम माम प्रपद्यन्ते। ज्ञानवान शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे पूर्ण ज्ञान हो। ऐसा व्यक्ति पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकता है और इसलिए वह उनकी शरण में जाता है। मुख नाक कान आदि प्रतीकों द्वारा व्यक्त भगवान का रूप नित्य है। ऐसे रूप के बिना कोई आनंदमय नहीं हो सकता। किंतु भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। जब कोई पूर्ण दिव्य आनंद को प्राप्त होता है तो वह भगवान के परम रूप को देख सकता है। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, गंधाख्या देवता यदवत पृथ्वी व्याप्य तिष्ठति एवं व्याप्तम जगत विष्णु ब्रह्मात्मस्थम तदर्श है। ब्रह्मा ने देखा कि जिस प्रकार सुगंधियां तथा रंग सारी पृथ्वी में फैलते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विराट विश्व में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवं सहस्र बदनांग शिरस करोरु नासाद्य कर्ण नयना भरणायुधाढ्यम मायामयम सदुपलक्षित सन्निवेशम दृष्ट्वा महापुरुषम माप मुदम विरंची। तब ब्रह्मा जी ने आपको हजारों हजारों मुखों पांवों सिरों हाथों जांघों नाकों कानों था आंखों से युक्त देखा। आप भली बात वस्त्र धारण किए थे और नाना प्रकार के आभूषण था आयुधों से सुशोभित थे। आपको विष्णु रूप में देखकर था आपके दिव्य लक्षणों एवं अधोलोकों से फैले हुए आपके चरण को देखकर ब्रह्मा जी को दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। तो आज मेरा सौभाग्य है कि आप सभी लोग के बीच मुझे श्रीमद् भागवतम का पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और विशेष रूप से जो हमारे
रेगुलर नित्य जूम पे मैं एक सेम क्लास देता हूँ। तो जूम में जितने भी भक्त हैं सबके चरणों में मैं वंदना करता हूँ क्योंकि आपके सहयोग से, आपके संग से मुझे महीने में 2 बार भागवतम पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो 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 यहाँ जो भक्त बैठे हैं, थोड़ा 2 मिनट उनके लिए बता के फिर आगे श्लोक में बोलूंगा। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान नृसिंह अपने भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए प्रहलाद महाराज के पिता का वध किया। वध करने के बाद फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, बहुत ही अशांत थे। तो उनके क्रोध को देख करके सभी देवी देवता, यहां तक कि ब्रह्मा, महादेव, शिव, जितने भी देवता है सब भयभीत थे और सब विचार कर रहे थे कैसे इनके क्रोध को शांत किया जाए। तो ब्रह्मा ने लक्ष्मी की तरफ देखा, लक्ष्मी भी घबरा गई कि ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा नहीं, वो भी आगे नहीं जा सकती, जबकि लक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल पे बैठती हैं, विराजमान रहती है। भगवान शिव भी आगे नहीं बढ़े और ब्रह्मा का भी साहस नहीं हुआ। तो ब्रह्मा ने विचार करके सोचा कि प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए भगवान विष्णु नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उनको वो ही जाके प्रार्थना करेंगे तो उनका क्रोध शांत हो। तो प्रहलाद महाराज को इशारे से भेजा ब्रह्मा ने। तो जब प्रहलाद महाराज गए, प्रणाम किया, तो भगवान बहुत ही संतुष्ट हो गए। अपने हाथ से उनके सर पर, अपने कर कमल उनके सर पर रखा। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, प्रहलाद महाराज दिव्य ज्ञान में अवस्थित हो गए। हालांकि प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त थे, भक्त हमेशा दिव्य ज्ञान में होता है, वो माया में नहीं होता है। भक्त कभी माया के वशीभूत नहीं हो सकता है। माया के वशीभूत साधक होते हैं जो भक्ति प्रारंभ किए हैं, लेकिन जो साधक जब भक्त हो जाता है, भक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तो माया उसको स्पर्श नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी भगवान की प्रार्थना के लिए कोई व्यक्ति माया से मुक्त होकर के भगवान को खुश नहीं कर सकता है। भगवान को संतुष्ट करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। जब भगवान के कर कमल से, भगवान ने अपने कर कमल से प्रहलाद महाराज के सर को स्पर्श किया, तुरंत ही प्रहलाद महाराज दिव्य के हृदय में भगवान की प्रार्थना की भावना प्रकट हो गई और प्रार्थना करने लगे। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक का वर्णन हुआ है। तो आज हम लोग ये श्लोक 36 का रसास्वादन करेंगे। इसके बाद 1-2 श्लोक लेंगे, हो सकता 3 भी लें। तो ये श्लोक के पहले 35 नंबर 35 नंबर के श्लोक में एक शब्द, ये वर्णन है, तीव्र तपसा परिशुद्ध भावा। तो प्रहलाद महाराज ब्रह्मा जी को याद कर रहे हैं। ये भक्त का स्वभाव है। भक्त अब हमेशा किसी भक्त के भक्ति को याद करता है। भक्त अपने भक्ति की प्रशंसा नहीं करता है। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो हमेशा अपने भक्ति की प्रशंसा करते हैं कि मैं इतना बजे उठता हूं, मेरा माला बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, जो महाभागवत प्रहलाद महाराज जैसे भक्त होते हैं, दोनों अपने को तो निम्न मानते हैं, अपना के हीन करी माने, दूसरे को बहुत महान मानते हैं। जब उनके सब हर प्रकार के गुण के संपन्न होने के बावजूद भी अपने को हीन मानते हैं, इसको भक्त कहते हैं। यही भक्ति की परिपूर्णता है। तो प्रहलाद महाराज, हालांकि उनकी रक्षा के लिए भगवान आए, फिर भी वो अपनी प्रार्थना में यहां ब्रह्मा जी को याद कर रहे हैं। डू फॉलो?
You don't follow Madhusudan? No problem. Here at least. Mataji, you people. Okay. तो यहाँ उनके ब्रह्मा की भक्ति को याद कर रहे हैं कि वैसे पीछे वर्णन है जब ब्रह्मा जी भगवान गर्भोदक साहिब विष्णु के कमल नाभ से, कमलवत नाभ से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ, वहां से ब्रह्मा का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी पता लगाने लगे मेरा जन्म का स्रोत क्या है, कमल पे मैं बैठा हूं, कमल कहां से पैदा हुआ है। तो 100 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक वो खोजते रहे कमल की नाल को पकड़ के नीचे ऊपर, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। तब उन्हें शब्द सुनाई दिया, तप तपस्या किए। बहुत लंबी तपस्या करने के बाद कहते हैं परिशुद्ध भावा, उनका हृदय, भाव का अर्थ होता है कॉन्शियसनेस, भावना, उनकी भावना शुद्ध हो गई, उनका मन और हृदय पवित्र हो गया। तो हम सभी लोग केवल भगवान से पवित्र भावना से ही, पवित्र मन से ही उसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। जब तक हम लोग का मन मलिन है, गंदा है, काम क्रोध लोभ मोह से आवृत है, हम उनको समझ नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते। कामी व्यक्ति काम को देखता है, ग्रीडी व्यक्ति धन को देखता है। जब ये इस शत्रुओं से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है हृदय, तब व्यक्ति वो शुद्ध सत्व में प्रवेश करता है। और शुद्ध सत्व में ही हम भगवान की लीला, रूप गुण लीला को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। तो जब ब्रह्मा जी का हृदय पूर्ण रूपेण पवित्र हो गया, आप सोचिए कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रथम जीव हैं। वो माता के गर्भ में गर्भ की वेदना को उन्हें सहन नहीं करना पड़ा। उनके शरीर में बुद्धि प्रधान है। हम लोग के 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में हमेशा एक तत्व प्रधान होता है किसी किसी। तो ब्रह्मा में बुद्धि प्रधान है और भगवान के साक्षात उनके शरीर से पैदा हुए। फिर भी अपने अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए उन्हें तपस्या करना पड़ा। और हम लोग क्या है, 2 दिन माला कर लेंगे, एकादशी उपवास कर लेंगे, हम सोचते हैं कि महान भक्त हो गए, हमारा हृदय बहुत पवित्र हो गया। ब्रह्मा जी कितना साल तक तपस्या किया, तब उन्हें उनका हृदय पवित्र हुआ। तो हम लोग सोचते हैं 10 साल भक्त माला कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 5 दिन माला किया, 10 दिन मेरा मन बहुत भाग रहा है, मन बस में नहीं है। ये हमको ध्यान रखना, यही उदाहरण है हमारे जीवन के लिए। कहने का हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम लोग 10-20 साल से भक्ति करते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, उत्साह कम हो जाता है और प्रश्न करते हैं, प्रभु जी भक्ति जब चालू किया था तो बहुत उत्साह था, अभी उत्साह कम हो गया है। तो लेकिन ब्रह्मा जी ने प्रश्न नहीं किया, वो कांस्टेंटली तपस्या करते रहे। जब उनका हृदय पवित्र हुआ तो क्या देखते हैं भगवान। अभी ये प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं लॉर्ड नरसिंह देव को, और नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान नरसिंह देव, आप को आपके रूप को देखने के लिए ब्रह्मा ने बहुत लंबी तपस्या किया। जब उनका हृदय पवित्र हुआ तो आपका विष्णु रूप देखा, आपका ये जो नरसिंह आधा हाफ लायन हाफ नर मनुष्य का रूप नहीं देखा, वो विष्णु का महापुरुष का रूप देखा। वो कौन महापुरुष रूप कौन है या कैसा है, तो यहाँ कहते हैं सहस्र बदनम अंग सिरह करोड़, हजारों हजारों उनके मुख हैं, हजारों हजारों मुख हैं, सिर हैं, पैर हैं, जांघें हैं, नाक है। ये महापुरुष का रूप है। और इतना होते हुए उनकी शरीर जो है बहुत सुंदर कपड़ों से, कपड़े
पीतांबर धारण किए हुए, हर हाथ में हर प्रकार का अस्त्र है, कुछ न कुछ है। भगवान का हाथ खाली नहीं होता है। हम लोग तो खाली हाथ से आते हैं और खाली हाथ से ही जाते हैं। हाँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हम अपना कर्म लेके आते हैं, और यहाँ जब रहते हैं तो थोड़ा समय तक हमारे हाथ में कुछ मिलता है, और हमारे हाथ में जो कुछ मिल जाता है तो हम लोग बहुत प्राउड हो जाते हैं, अहंकार से वशीभूत हो जाते हैं, और कोई हंसते हुए नहीं आता। लेकिन जब भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनका हाथ खाली नहीं रहता है, हमेशा उनके हर, चाहे हजारों हाथ हैं, फिर भी हर हाथ में कुछ न कुछ होता है। इस प्रकार से महापुरुष का दर्शन करके ब्रह्मा जी बहुत आनंद में हो गए, क्योंकि ब्रह्मा का हृदय पवित्र हो गया था। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में उदाहरण मिलता है कि जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का दूत बन करके गए हस्तिनापुर, तो वहां भगवान ने उनका, दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन ने कहा कि हाँ, जब हमारे गेस्ट बनिए, 56 भोग बनवाया, 56 आइटम वैरायटीज। फिर भगवान कहे नहीं, मैं तुम्हारा, मेरे साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तुम मेरा, भगवान का संबंध तो भगवान के भक्त के साथ होता है। तो भगवान कृष्ण विदुर के यहाँ गए। हम जानते हैं केले का छिलका खाए, भगवान हमारे रोटी चपाती मालपुआ और पिज्जा पास्ता के भूखे नहीं है, यो में भक्त्या परक, भक्ति के। तो इस प्रकार से जब दुर्योधन ने अपना बहुत ही अनादर समझा कि मेरा बहुत इंसल्ट हो गया, दूसरे दिन भगवान की बात को नहीं माना और आदेश दे दिया, पकड़ लो। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप देखने का ये जादूगर है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो कहां से पकड़ेगा, उसकी बुद्धि पर। और यहां वर्णन है, कहते हैं मुदम बिरंची, जब ये रूप भगवान का देखा ब्रह्मा ने बहुत खुश हो गए। अब क्योंकि दुर्योधन असुर था, वो असुर का हृदय पवित्र नहीं होता है, असुर स्वभाव कृष्ण कभी नहीं जाने, आसुरिक स्वभाव से भगवान कोई समझ नहीं सकता, इसलिए उसका हृदय पवित्र नहीं था। वो भगवान का विराट रूप देख करके वो संतुष्ट नहीं, क्योंकि वास्तव में भगवान तो एको बहुश्याम, भगवान के 2 हाथ हैं, आवश्यकता पड़ने पर करोड़ों हाथ हो सकते हैं, करोड़ों मुख हो सकते हैं, करोड़ों पैर हो सकते हैं। यही यहाँ वर्णन है विराट रूप का, महापुरुष के रूप का। और भक्त लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी बहुत सोच रहे, हमारे भगवान कितने महान हैं, कि उनका कैसे, देखिए 2 हाथ था, कितना बड़ा उनका रूप बना लिया, ये भगवान है। अणो अणियान महतो महियान, भगवान छोटे से छोटे हैं, महान से महान है। इस प्रकार से ये रूप देख करके ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। यहाँ शब्द हुआ है मुदम बिरंची, बिरंची का अर्थ है ब्रह्मा, बहुत ही संतुष्ट हो गए। अभी श्री प्रभुपाद जी यहाँ अपने तात्पर्य में कहते हैं, भगवान का एक रूप है, इस संसार में निराकार वादी कहते हैं कि निराकार से साकार प्रकट होता है, यह असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। आज तक कोई भी चीज निराकार से प्रकट नहीं हुई, हमेशा साकार से साकार ही प्रकट होता है। तो भगवान के, यहां तक कि ब्रह्म ज्योति जिसका कोई रूप नहीं है, वो भगवान के शरीर की अंग कांति है। तो यहां जो शब्द यूज हुआ है माया मयम, तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, माया मयम का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि अज्ञानता, माया मयम का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। तो कहने का अर्थ है भगवान आध्यात्मिक हैं, भगवान का से जो संबंध स्थापित करने का साधन है, जिसे अभिधेय कहते हैं, वो भक्ति, वो भी आध्यात्मिक है, और जीव आत्मा भी आध्यात्मिक है। जैसे सूर्य को बादल कवर कर देती है,
उसी प्रकार से माया जो है भगवान को कवर नहीं कर सकती, लेकिन हमारी आंख को कवर कर देती है, हमारे ज्ञान को ढक देती है। तो इसलिए हम भगवान को समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। जब भक्ति के द्वारा माया का आवरण हटता है, तब हम साक्षात भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए जब व्यक्ति सत्व में, यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब व्यक्ति सत्व गुण में भक्ति का अभ्यास करता है और धीरे धीरे सत्व गुण शुद्ध सत्व में प्रवेश करता है, उस समय हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम। जब हम विशुद्ध सत्व में प्रवेश करते हैं, तभी हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं। नहीं तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब तपस्या के द्वारा उनका हृदय पवित्र हुआ, तो भगवान का महापुरुष रूप देखा। और अब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, सेम रूप अर्जुन ने देखा था। अर्जुन ने सेम रूप देख करके भयभीत हो गया, फिर प्रार्थना करने लगा, तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम। आप आदि पुरुष हो, सबके निधान हो। और फिर प्रार्थना करता है, सखेति मत्वा प्रसभम यद, मैं आपको मित्र समझ करके आपका बहुत अपमान किया हूं। आप एक ही बेड पे सो गया था, एक ही प्लेट में कभी कभी खा लिया था, भोजनेशु खा लिया था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो कहने का अर्थ है, ये वास्तव में भगवान भक्त जो है भगवान के विराट रूप का दर्शन नहीं करना चाहते। कभी कभी भक्तों की इच्छा होती है तो भगवान दिखा देते हैं विराट रूप। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके अपने हृदय को पवित्र किया, हे नरसिंह देव, भगवान नरसिंह देव, तो आपका इस प्रकार का रूप देखा। अभी फिर कहते हैं फिर लीला के माध्यम से भगवान की महानता का वर्णन करते हैं, भगवान की कृपा का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 37 कहते, तस्मै भवान है शिरस तनुम ही बिभ्रत वेद द्रुहावति बलो मधुकैट भाख्य हत्वानन छुति गणास रजस्तमस्य सत्वम तव प्रियतमाम तनुमा मनन्ते। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हे भगवान, जब आप घोड़े का सिर धारण करके है ग्रीवा के रूप में प्रकट हुए थे, तो आपने रजो था तमो गुण से पूर्ण मधु तथा कैटभ नामक 2 असुरों का संहार किया। फिर आपने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। इसी कारण से सारे महान ऋषिगण आपके रूप को दिव्य अर्थात भौतिक गुणों से अछूता मानते हैं। अभी फिर नरसिंह देव की प्रार्थना करते हुए भगवान नरसिंह देव की कृपा का वर्णन करते हैं, कैसे अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं रक्षा के द्वारा। इसलिए भक्त जो भक्ति करते हैं, हमेशा उनको विश्वास होना चाहिए कि भगवान की मैं भक्ति कर रहा, अवश्य रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षा करेंगे। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम अपना आंख बंद करके बैठ जाएं, कान बंद करके सो जाएं। इसका अर्थ नहीं होता है। तो यहां वर्णन है, कहते हैं कि एक बार की घटना है, ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकला है। ब्रह्मा जी के हाथ में वेद होते हैं, 4 वेद। असुर लोग हमेशा ज्ञान को नष्ट करके अज्ञानता का प्रचार करते हैं, वेद का नाश करना चाहते हैं। अब वर्तमान समय में
लोग असुर लोग वेद को नहीं मानते हैं। जो असुर लोग नास्तिक होते हैं, वेद ना मानिला बौद्ध हाइल नास्तिक, चैतन्य चरितामृत, जो वेद को शास्त्र को नहीं मानता है उनको नास्तिक कहते हैं। तो नास्तिक लोग वेद को नहीं मानते हैं, वो आसुरी होते हैं, तो हमेशा वेद को नष्ट करना चाहते हैं। तो एक बार की घटना है कि ब्रह्मा की कान की सॉरी भगवान के कान की गंदगी से दो आसुर प्रकट हो गए, मधु और कैटभ प्रकट हो गए, और वो सबसे पहले ब्रह्मा के पास जा करके उनसे वेद छीन के लेके भाग गए। अभी जो आदमी के ज्ञान ब्रह्मा ज्ञान में हो गए, क्योंकि वेद ही ज्ञान है, तो अज्ञान मुक्त कर से सृष्टि भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो तब भगवान है ग्रीवा, है का अर्थ है घोड़ा, घोड़े का सर धारण करके वो प्रकट हुए और मधु और कैटभ का वध करके वेद को ले जाकर के ब्रह्मा को दिया। फिर ब्रह्मा को ज्ञान हुआ। तो कहने का अर्थ है, कोई भी आप देख सकते हैं इस मानव समाज में, यहां तक कि ब्रह्मा भी यदि वेदों से च्युत हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो अज्ञान हो जाएंगे। कोई ज्ञान जो है हम हमेशा देख करके, सुन करके, पढ़ करके ज्ञान लेते हैं। आप देखिए, कभी हम मैप देख करके कहीं जाते हैं तो मैप के द्वारा हम उस ज्ञान लेते हैं। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा भी वेद के बगैर स्वतः ज्ञान नहीं हो सकता है। तो जो वेद के रास्ते पर नहीं चलता है उसको अज्ञानी कहते हैं। चाहे कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों न हो, कितना बड़ा कोई व्यक्ति, अगर वेद का ज्ञान नहीं जानता है, शास्त्र को नहीं जानता है, तो अज्ञानी है। तो आजकल सब लोग अपना अपना पुस्तक लिखते हैं और अपना पुस्तक लिख के बड़ी बड़ी डिग्री लेते हैं, लेकिन वास्तव में बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी उन्हें पता नहीं चलता है कि हमारे पास जो समस्या आ रही है क्यों आ रही है। जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिले। सनातन गोस्वामी कहते हैं, ग्राम में व्यवहार कहे पंडित सत्य कर मानी, अपना हित हित किछु नहीं जानी। कहते हैं वास्तव में सनातन गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान थे, इतने महान विद्वान थे। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण थे, तो भी चैतन्य महाप्रभु की सलाह को, एडवाइस को मानते थे, बृहस्पति के समान थे सनातन गोस्वामी। लेकिन वो भी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, उनके पास जाते हैं, प्रश्न कहते हैं कि गांव में मैं जाता हूं, सब लोग हम कहते हैं पंडित जी पंडित जी पंडित, पंडित जी का अर्थ है विद्वान, और मैं पंडित सुन करके मेरा गर्व बढ़ जाता, अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन सत्य तो यह है, ट्रुथ क्या है, सत्य है, अपना हित हित कछु नहीं जाने। मेरा उसमें क्या, मेरे लिए हित क्या है, हमारे लाभ के लिए कौन सी चीज है, कौन मुझे नुकसान करेगी, ये हम नहीं जानते। जैसे हम कभी बीमार होते हैं, हम कुछ अज्ञान में कुछ खा लेंगे, ज्यादा बीमार हो जाएंगे। आप सोचिए, हमको पता नहीं चलता है, सेम चीज। तो कहने का अर्थ है, ज्ञान का स्रोत वेद है, वेद भगवान के मुख से निकलता है, वेद भगवान की वाणी है, और वेद का एक ही उद्देश्य है, भगवान को समझना। वेदैज सर्वै अहम एव वेद्य, वेद जो है भगवान को समझने के लिए। ज्ञान का अर्थ होता है, ज्ञान का अर्थ नहीं है हम कैसे भोजन करें, कैसे सोएं, कैसे आहार निद्रा भय मैथुनम, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। ज्ञान का अर्थ होता है ब्रह्म को जानना, भगवान को जानना, उसको ज्ञान का उपयोग वहां होता है, और ये ज्ञान केवल वेदों के द्वारा ही हम जान सकते हैं। इसलिए आज समाज में वैदिक ज्ञान का लोप हो गया है, इसलिए सब लोग नास्तिक हो गए। जब तक शास्त्रों के आधार पर हमारा जीवन नहीं चलेगा, हम हमेशा लस्टी होते जाएंगे, ग्रीडी होते जाएंगे, इनवियस होंगे, ये सब दुर्गुण आएंगे। जब शास्त्रों के ज्ञान से
ये चीजें कंट्रोल में आती हैं। लेकिन और भौतिक ज्ञान से ये चीजें हमारी, क्योंकि वही शिक्षा दी जाती है कैसे हमारी भौतिक भौतिक वस्तुएं बढ़े, और यही शिक्षा दी जाती है कैसे हमारी लस्ट बढ़े, काम। लेकिन वेद जो है ये शत्रुओं को हमारे नाश करते हैं, नष्ट करते हैं। इसलिए जो पहले जो श्रीमंत क्यों लोग होते थे, ये प्रैक्टिकल है। लोग श्रीमंत का अर्थ है उसमें अच्छे गुण तभी होगा जब इंद्रियां बस में होती है, और शास्त्रों की शिक्षा से ही इंद्रियां बस में होती हैं। क्योंकि शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है इंद्रियों को प्रारंभ से ही। इंद्रिय तपस्या का अर्थ है तपसा ब्रह्मचर्य न समेन छ दमेन छ। तपस्या का अर्थ ही होता है इंद्रियों को का दमन करना। तो ये इसलिए जरूर। तो वेद जब ब्रह्मा के हाथ से चले गए तो कैसे उनकी इंद्रियां भी बस में नहीं होगी। वो अज्ञान में, अज्ञान का अर्थ होता है हर काम भौतिक काम ही करेगा। अज्ञान का अर्थ है भौतिक कार्य में 24 घंटे लगा रहना, उसको अज्ञानता कहते हैं। तो इसलिए शास्त्र की विशेष भगवत गीता श्रीमद् भागवतम जो संपूर्ण वेदों का परिपक्व फल है, उसकी बहुत आवश्यकता है समाज में। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जो कृष्ण भावना शास्त्रों का प्रचार करता है वो संसार में सबसे वेलफेयर, वो सबसे बड़ा दानी है, समाज का कल्याण कर रहा है। तो यहां कहते हैं कि भगवान जो है कैसे थे, मधु और कैटव वेद द्रुहा, कहते वो वेद को नहीं मानते थे। इसलिए आज देखिए मटेरियलिस्टिक लोग हैं, पहले शास्त्र ज्ञान का नष्ट कर देते हैं, तभी मटेरियल चीज का विस्तार होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। जब तक शास्त्र हमारे पास है लोग मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकते हैं। तो पहले वो शास्त्र को ही नहीं मानते हैं। तो इसलिए कहते हैं असुर जो कहते हैं वेद द्रुहा, वो जो दोनों असुर थे वो शास्त्र को नहीं मानते थे। इसलिए ब्रह्मा को क्यों आप शास्त्र लेके घूम रहे हो, उनके हाथ से छीन लिया। जब ब्रह्मा जी अज्ञान में आ जाएंगे सृष्टि के हर जीव अज्ञान में आ जाएंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी का कार्य क्या है, हर जीव को लोकेट करते हैं, हर प्लानेट को लोकेट करते हैं। ये प्लानेट यहां होना चाहिए, देवता का ये काम है, वो देवता का वो काम, हर चीज ब्रह्मा का कार्य है। तो अगर उनको शास्त्र उनके हाथ में नहीं रहेगा तो सब इधर उधर कर देंगे। उस ब्राह्मण का क्या गुण है, क्षत्रिय का क्या गुण है, वैश्य, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जो है आप देखिए वैदिक, जब ये अंग्रेज लोग भारत पर जब शासन करना प्रारंभ किया, सबसे पहले वो शास्त्रों से दूर कर दिया, ये उनके स्कूल से निकाल दिया उनके सिलेबस से निकाल दिया। तो ये आसुरी है। आप देख सकते हैं यहाँ मधु और कौटब ब्रह्मा से छीन लिया, और कैसे थे, बहुत बलशाली होते, कहते हैं कि बहुत बलशाली थे। और ऐसे क्या रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण में थे दोनों। तो भगवान ने आकर के दोनों का वध करके शास्त्र की स्थापना की। एक श्लोक और ले लूं कि फिर प्रश्न उत्तर? 10 मिनट बाकी है। हाँ प्रभु जी, प्रश्न कर लेते हैं। हाँ प्रश्न कर। प्रभु जी बहुत बहुत सुंदर क्लास था, बहुत इतने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट थे। खास करके बस जैसे कि हमें याद रहे, हम 2 पॉइंट आपके बहुत अच्छे लगे। एक तो जो आपने बोला कि भक्त दूसरे भक्त की सेवा याद करता है। तो मतलब कि हम हर बार दूसरे डिवोटीज को अलग अलग तरीके से याद करते हैं, उसने ये किया वो किया, हमें ऐसा बोल दिया ऐसा कर दिया। लेकिन जो असली भक्त होता है दूसरे भक्त की सेवा याद करता है कि उसने भगवान की सेवा कैसे करी। और दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो आप बोले कि ब्रह्मा जी भी कितना उनको तपस्या करनी पड़ी, जबकि उनकी शरीर बुद्धि की ही बनी है। हमारे तरह ऐसे वो नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन बुद्धि की बनी है, तब भी उनको भी पवित्र होने के लिए तपस्या करनी पड़ी। तो हमारी इसमें क्या बात है। बहुत अच्छे पॉइंट थे प्रभु जी, इतने सारे तो दोहरा नहीं सकते, लेकिन बहुत सुंदर क्लास था। थैंक यू वेरी मच। किसी के पास कोई अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। हाँ हर्षित। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम।
थैंक यू। जैसे राधिका रमन प्रभु ने बोला कि बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए आपने आज। महाराज, मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कि विशुद्ध सत्व की आवश्यकता है फॉर अ रिलेशनशिप विथ विथ कृष्णा। तो जब हम साधना कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि हम विशुद्ध सत्व एक्सपीरियंस कर सकते हैं, भले ही आप 1 सेकंड के लिए या माइक्रो सेकंड के लिए, और फिर आप फिर वापस वो मोड्स में आ जाते हैं कि ना साधक को विशुद्ध ज- सत्व नहीं एक्सेस है। ना जब जो विशुद्ध सत्व में कोई स्थित हो जाता है, वो डाउन नहीं हो सकता है, हमेशा उसमें रहेगा। जब तक हम सत्व गुण या रजोगुण हमेशा इस भौतिक जीवन में प्रभावित, तमोगुण तो नहीं, लेकिन सत्व गुण और रजोगुण तो ऊपर नीचे होता रहता है। कभी सत्व गुण में रहे, कभी रजोगुण में। तमोगुण में तो भक्ति होती नहीं है। तो हम्म, रजोगुण में भक्ति होती है, हम भौतिक चीज को ज्यादा चाहते हैं। हम्म, जो रजोगुण में भक्ति करता है उसे भौतिक चीज ज्यादा चाहिए। हाँ, लेकिन जो सत्व गुण में भक्ति करता है वो भौतिक चीज नहीं चाहिए उसे, वो भक्ति में आनंद लेता है। तो जो सत्व गुण में भक्ति करते करते हमेशा सत्व गुण में स्थित हो जाता है, वो भौतिक नहीं चाहिए उसको कुछ, भगवान देना भी चाहते हैं। जैसे रजोगुण में ध्रुव महाराज ने भक्ति किया, जब भगवान प्रकट हुए तो उनकी भक्ति भक्ति ही हमको सत्व गुण को शुद्ध कर देती है। भक्ति करेगी, हमारा काम नहीं है। हम कभी भी शुद्ध सत्व गुण, हम खुद अपने सत्व गुणों के लिए हम एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। सुबह उठेंगे, सत्वगुणी भोजन करेंगे, ये सब सत्व गुण में हम प्रवेश खुद करते हैं। लेकिन भक्ति हम आपको शुद्ध सत्व में प्रवेश कराती है, ये भक्ति का कार्य है। हम लोग को हमेशा सत्वगुण में होना चाहिए। सत्वगुण का अर्थ है सत्वगुणी व्यक्ति से संग करना चाहिए, साथ का अभ्यास करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, सत्वगुणी भोजन करना चाहिए। तो ऐसे होना चाहिए, तो हम सत्वगुण में रह सकते हैं ऐसे। तो लेकिन जब इसमें भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति में बहुत अच्छी से चलती है, और धीरे धीरे समय आने पर हमारा ये गुण पवित्र हो जाता है, तो शुद्ध सत्व में प्रवेश करते हैं। तो शुद्ध सत्व में जब प्रवेश करते हैं तब हमें, जैसे ब्रह्मा जी ने अनुभव किया, तो हमें अनुभव होता है भगवान के रूप का, लीला। ऐसे हम सुन के अनुभव करते हैं सत्व गुण में। जैसे ये सेम चीज हम सुन के सेम लाभ मिलता है। जब स्पेशली जो व्यक्ति शुद्ध सत्व में है, अगर उसका संग मिल जाए तो हम तुरंत ही पवित्र हो जाते हैं, उसे हम सुनते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी शुद्ध सत्व में थे, सुखदेव गोस्वामी शुद्ध सत्व में थे, जितने भागवत में वर्णन है आचार्यों का। तो इसलिए हम उनका श्लोक पढ़ते हैं, उनका तात्पर्य पढ़ते हैं, तो इससे हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यस, थैंक यू। क्लियर, थैंक यस। यू। दीपक प्रभु, आपके पास प्रश्न था? हाँ, हरे हरे कृष्णा महाराज जी, दीपक बोल रहा हूँ हाँ, मैं। हाँ दीपक जी, हरे कृष्णा। हाँ। मैं आपका नाम सुन के बहुत संतुष्ट होता हूँ। महाराज जी, आपने जैसे बताया कि वैदिक जो ज्ञान है उससे हमारा पूरा अभी जो जो लोग जा दूर हो रहे हैं, और आपने बोला वैदिक ज्ञान का बड़ा महत्व है। तो वैदिक ज्ञान का आपने एक बात और अच्छी बताई कि इसका पूरा परिपक्व फल जो है वो श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता कह सकते हैं। तो प्रभु जी, क्या यदि महाराज जी, क्या यदि हम दो सिर्फ शास्त्र पढ़े, भागवतम और श्रीमद् भागवतम, जिसका भी पूर्ण अच्छे से पढ़ना संभव नहीं लगता है जीवन में, तो क्या साफ काफी होगा कि और कोई वैदिक, क्योंकि वैदिक बहुत लंबा एक ज्ञान है जिसकी जिसके जिसके ऊपर जो नहीं पा सकते हम। तो आप इसके बारे में थोड़ा हाँ, बताएंगे कि वैदिक आपका ज्ञान प्रश्न, का मूल क्या है? आपका प्रश्न ये जो भगवत गीता भागवतम है, हाँ तो हाँ। आप केवल भगवत गीता पढ़ करके भगवान के धाम जा सकते अच्छा। हैं। और भगवत वैदिक गीता ज्ञान में? पढ़ने का अर्थ होता है भगवत गीता के आदेश के अनुसार अपना जीवन चलाना। हाँ जब हाँ। हम भगवत गीता के को भक्त से सीखते हैं, सीखने का अर्थ है अपना जीवन चलाते हैं, तो भगवत गीता एक श्लोक भी काफी है, एक वर्ड भी काफी है। जैसे भगवान कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजीम नमाम नमस्कुरु। अपना मन मुझ में लगाओ, मुझे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो। ये 4 चीज आप करेंगे, बस ये भगवत गीता पढ़ लिए। और वो पढ़ा भी नहीं था, जो उदाहरण है,
साउथ इंडिया में चैतन्य महाप्रभु थे, रंगम टेम्पल में एक ब्राह्मण देवता थे। केवल उनके गुरु ने आदेश दिया कि भगवद्गीता पढ़िए, और भगवद्गीता वो पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन भगवद्गीता गुरु का आदेश पालन करते थे। गुरु मुख पद्म के चित्त ते करिए के आरन करी मने आशा। उनके गुरु ने आदेश दिया कि भगवद्गीता पढ़िए, पर पढ़ते नहीं, जानते नहीं थे, लेकिन हर रोज लेके बैठते थे और बच्चे लोग हंसी उड़ाते थे, मजाक करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु देखे, जैसे वो देखे तो अरे ये ब्राह्मण तो भगवद्गीता पढ़ रहा है। जब भगवद्गीता वो पूछेगा, अरे ब्राह्मण जी आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, बोलते हैं श्रीपाद जी मुझे पढ़ने आता नहीं, लेकिन आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन गुरु महाराज ने आदेश दिया इसलिए कि बैठता हूं। अगर पढ़ नहीं रहे हो तो आपकी आंख में आंसू क्यों है? इसलिए जब मैं पकड़ता हूं तो हमें याद आ जाता है भगवान इतने त्रिलोकीनाथ हैं, संपूर्ण देवी देवताओं के मालिक हैं, वो अपने भक्त का रथ चला रहे हैं। ये मैं याद करता हूं तो हमारे आंख में आंसू आ जाता है, रोता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहता है इसको ही कहते हैं भगवद्गीता। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आलिंगन किए और चैतन्य कृष्ण का दर्शन हुआ। इसलिए जब हम भाग से भगवद्गीता पढ़ते हैं, वो तो भाग्यशाली था, हम इतनी हमारी श्रद्धा हो सकता ना हो, लेकिन हम भक्त अगर कहता है पढ़िए, अगर हम पढ़ना जानते हैं तो पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं 16 माला जप करिए, तो हमें जप करना चाहिए, 4 नियम का पालन करिए, करना चाहिए। तो इतना केवल करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक हरे कृष्ण। धन्यवाद। अमृता केली या पुरुषोत्तम। Hare Krishna, Umapati Prabhu. हरे कृष्ण। Thank you for that wonderful class. So my question is, you mentioned a point about utsa or enthusiasm. So my question on enthusiasm is, how would we define what is enthusiasm? Distinguish it from a passion, the mode of passion, and was one question. And the second question was, how does one maintain one's enthusiasm in Krishna consciousness? Just 2 questions. Okay. Just like जो मटेरियल वर्ल्ड में इंथुजियाज्म है वो रजोगुण से कनेक्टेड है, लेकिन जो आध्यात्मिक जो उत्साह होता है सत्व गुण से कनेक्टेड होता है। तो जो आदमी ज्ञान के द्वारा, जैसे लोग स्कूल जाते हैं बच्चे, उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन वो लाभ देते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, तकलीफ है फिर भी करते हैं। सेम चीज स्पिरिचुअल लाइफ में होना चाहिए। हमारा उत्साह नहीं हो रहा है, फिर भी हम करेंगे तो उत्साह आ जाएगा। उत्साह को मेंटेन करने के लिए किसी को बिगनिंग में किसी को उत्साह नहीं होता है, वो साधु की वाणी पे श्रद्धा है इसलिए उसको करते हैं। जो कहते हैं भक्ति का 6 अंग है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत् कर्म प्रवर्त्या, संग त्याग सतो व्यक्ति षड्भी भक्ति प्रसिद्धति। तो बिगिनिंग में किसी को उत्साह नहीं, साधु संग में उत्साह होता है। साधु लोग गाते हैं, नाचते हैं, साथ में नाचते हैं, तो हृदय पवित्र होता है, तो उसकी बात पे विश्वास होता है। तो विश्वास जब करते हैं तब उत्साह आता है। जब कार्य करने से थोड़ा प्रॉफिट मिलता है तो उत्साह आता है, नहीं तो उत्साह नहीं आता है। उत्साह मेंटेन करने के लिए हमेशा साधु का संग चाहिए, एसोसिएशन के बगैर उत्साह नहीं होगा। इसलिए उत्साह जो है साधक का लक्षण है। तो साधक के लिए, साधक का श्रद्धा से साधन होता है और लोलुपता से राग भक्ति होती है। तो जिसमें श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा तब होगा जो साधु संग करेगा, उससे उत्साह आ जाएगा, निश्चय आ जाएगा, धैर्य, सब कुछ आ जाता है। इट्स क्लियर? Yes, yeah, thank you so much. नहीं तो आप लोग के पास कोई हाँ नहीं प्रभु जी आप सामने पूछ लीजिए। आप लोग के नहीं, आपका पहले, क्योंकि आप लोग का पहला राइट है। नहीं हम तो यही पूछने वाले थे कि किसी के पास और था क्या प्रश्न, किसी का हाथ नहीं है अभी। हाथ किसी का उठा नहीं है? नहीं अभी तो नहीं।
तो आप लोग का कोई प्रश्न है? हाँ, पार्ट टू। प्रभु जी, आपने बताया जो प्रहलाद महाराज ने बोले कि ब्रह्मा जी की कृपा से ये अद्भुत रूप देखा है, तो नहीं, ऐसा नहीं बताया, आप सुनने में थोड़ा मिस्टेक किया। प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह से, आपका जो अद्भुत रूप नहीं, ब्रह्मा जी तपस्या किए, तपस्या से उनका हृदय पवित्र हुआ, तो आपका विष्णु का रूप देखा, महापुरुष का। नरसिंह देव को पहचानते हैं विष्णु जैसे, आप समझ रहे हैं ना, वो उनको नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं, आप महाविष्णु हो, महापुरुष हो। तो जब ब्रह्मा जी ने, क्योंकि जो आपकी बहुत तप आपको समझ नहीं पाए, तो तपस्या से उनका हृदय पवित्र हुआ, तब आपका रूप देखा। तो नरसिंह देव को प्रार्थना वो कर रहे हैं, आप विष्णु हो, कहने का अर्थ है आप ही विष्णु हो, ऐसा प्रहलाद महाराज कहते हैं। क्लियर? आपके पास कोई प्रश्न है? माता, यू हैव एनी क्वेश्चन? यू अंडरस्टूड समथिंग? You were talking about something about mode of goodness. Yeah. If you can explain that in English. Mode of goodness. Mode of goodness, I spoke. We can create environment. Just like somebody wants to maintain modes of goodness, he has to get up early in the morning, take bath, put tilak, and he should eat goodness prasadam. He should not associate a person who is in the modes of passion and ignorance. In this way, we can maintain the modes of goodness. I think समय पूरा हो गया प्रभु जी। अभी किसी का प्रश्न हो तो फिर। बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है प्रभु जी कि हमारा समय पूरा हो गया, नहीं तो ऐसे कथा चलती रहेगी तो हमें आनंद मिलता रहेगा बहुत। नहीं, मैं लेट चालू किया, यहाँ थोड़ा ऐसे कीर्तन लंबा हो गया, नहीं तो एक श्लोक और लेने की इच्छा थी। अच्छा, नहीं, बहुत बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे कि आप, वो भी पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि वेदों के बिना ब्रह्मा जी भी वो है इग्नोरेंट है, उनके पास भी, उनको भी वेद चाहिए, नहीं तो वो मतलब स्वयंभू है, फिर भी उनको वेद के बिना उनके पास ज्ञान नहीं। और दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा था जो हाथ आपने बताया कि भगवान कभी उनके हाथ खाली नहीं होते। आप किसी भी चित्र में देख लो तो भगवान के हाथ खाली नहीं देखेंगे, उसमें बांसुरी रहेगी, या फिर वो गाय चराने के लिए कोई, या फिर कोई सुदर्शन चक्र। हमारे ही हाथ खाली होते हैं, भगवान के कभी नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट था ये। आपके संग से पॉइंट निकल गया, क्योंकि मैं भी नहीं सोचा था ऐसे, तो वर्णन करते समय हमारे मुख से निकल गया। थैंक यू। तो फिर कब प्रभु जी, कब क्लास कर पाएंगे? अभी अपना नेक्स्ट संडे कौन सा डेट आ रहा है? ये हाँ 22 तारीख है। 21, 22 को तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम नैरोबी में प्रोग्राम है। अच्छा, डीओटी अप्रिसिएशन। ठीक है। तो 29 फिर उसके बाद अगला? हाँ, 29 को होगा। तो फिर इस महीने फिर भी 2 हो जाएंगे, 29 को अगर करते हैं। 29। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप लोग का दर्शन, एक्चुअली इसी बहाने सब वैष्णव का दर्शन मिलता है, तो मेरा हृदय भी पवित्र हो जाता है। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उमापति प्रभु जी की श्रीमद् जय। भागवत की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, सिंहदेव भगवान की जय, जय गौर परमानंद हरे। हरि हरि बोल।